Nagina, first of all, I would like to thank you and all our members would love to thank you for coming on in this call and taking our call. नगीना, मेरी तरफ से और हमारे जो सारे यहाँ दोस्त अहबाब हैं जो आपके खैर ख्वाह हैं, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया कि आप इस कॉल पर आए. I would like to inform you that since we adopted this case, there have been overwhelming response and there have been overwhelming reaction to your daughter case, and I can assure you that you are not alone, but there is many believers around the world really you have their support and their prayers. जब से हमने आपका केस लिया है, बहुत सारे लोग बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी मदद करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है. जी. Nagina, first of all, the timeline is tied. I would just like to tell you that we're starting our organization in a cooperation with Shan organization in Pakistan. We're starting the process and hiring a new lawyer to join the case, to be added to the defense team. But also, very shortly today or tomorrow, we're sending you some funds through Western Union to help your life expense. हमारा जो यहाँ इदारा है टोरंटो में जिसका नाम वन फ्री वर्ल्ड इंटरनेशनल है, वो इदारा और मेरा शान तासीर का जो इदारा है पाकिस्तान फॉर ऑल, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहली बात ये, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपको मज़ीद वकील लेकर देंगे या आपके अभी जो आपके वकील हैं उनसे गुफ्तगू जारी करेंगे और अनकरीब 1-2 दिनों में, जिस तरह हमने वादा किया था, हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं आपकी महीने की खर्चों के लिए और इसलिए कि आपकी थोड़ी मुश्किलात कम हों, वो हम आपको 1 या 2 दिन तक भेज देंगे. Tell her that everybody already we know her story and we published the story. Tell her we are not here just to waste her time and taking one more video to publish it. We are here to take a real action and we are here to help her on the long run and will not give up until her daughter and her family is completely free in Jesus' name. नगीना, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे. हम इधर आए हैं आपकी मदद करने के लिए और लंबी दौड़ तक हम आपके साथ हैं जब तक आपकी बेटी आजाद नहीं होती. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Because this call already people know your story, I would like to focus on a couple of questions that I want to ask you. My first question to you will be, what's your message to the people that listening to us right now, people in the West? What's your message? What do you need from them? What do you want to tell them with regard to your daughter? नगीना, सारी दुनिया में बहुत लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं. आपकी कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपका क्या पैगाम है दुनिया को और आप क्या चाहती हैं अपनी बेटी के लिए और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती हैं. मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको सारा पता है, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे मेरी हुमा मिल जाए किसी तरीके. मैं कहती हूँ कि मैं उस बंदे का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी कि पाँव धोकर भी पीने पड़े तो मैं पीऊंगी. मुझे मेरी बच्ची चाहिए. मैंने 1 साल से बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, वो खुदा ने मुझे हिम्मत दी. मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैंने बड़े-बड़े थ्रेट भी सहे हैं. बहुत सारे लोग मुझे वीडियो कॉलों पे धमकियाँ देते रहे, बंदूकें दिखाते रहे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी. मैंने फिर भी अभी तक वैसे की वैसे ही खड़ी हूँ कि मैं अपनी बच्ची को, मुझे यकीन है कि खुदा ज़रूर आज़ाद करवाएगा उसे. I want my daughter back at all costs, in all circumstances.
I will wash with water and wash the feet of and drink the water of the person who brings my daughter back. The last year has been very difficult. We have faced many difficulties and we faced many problems, but I am very certain that my daughter is going to come back one day. And I will be extremely grateful for all those who helped me. But there is one thing I want, and that is my daughter, and I have great faith that she will come back. What's if you can just elaborate more on the danger and the difficulties that she's facing. I like what's the threats that I'm aware that she's been receiving some threats, dangerous threats. She and her family is in a dangerous situation. I would like her to name some of these threats, some of these difficulties, so that people become full aware of her difficulties and the lifestyle that she lives right now. आपको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपनी जाती जिंदगी में भी, हालात का भी सामना करना पड़ रहा है, और जो धमकियां मिल रही हैं और जिस खतरे में आप रह रही हैं, आप उसका हमें इजहार कर सकती हैं प्लीज. मैं जब हम लोग कोर्ट से बाहर निकले ना, तो मुझे एक वीडियो कॉल आई। मैंने उस टाइम इस तरह का था वक़्त कि मुझे कुछ भी समझ मैं वैसे ही पागल हो गई थी। मैंने नहीं देखा वो मेरे नंबर जानने वाला है या नहीं, अननोन नंबर था। मैंने वो कॉल उठाई और आगे से एक बंदे ने बंदूक पकड़ी और यूँ मुझे इशारा कर रहा है कि तुम मार दिया जाएगा तुम लोग को। तो एकदम मैंने डर के बंद कर दिया। उसके बाद मुसलसल वो बंदा फ़ोन करता रहा और एक बार मैंने वो कॉल उठा के तो मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उसने कैमरे पे हाथ कहीं रख दिया। तो उसके बाद मुसलसल वो मुझे वीडियो कॉलें करता रहा, मैंने नहीं उठाई और फिर वीडियो बंदूकों की वीडियो और असले की वीडियो और फायरिंग हो रही है, इस तरह की वीडियो वो मुझे भेजता रहा। और फिर मैं आखिर में तो वो फिर इतनी गंदी वीडियो भेजने लगा, फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। We have been तो receiving, मैं पहले ये समझा देता हूँ. We have been receiving many threats. Particularly there is one person who calls from an unknown number, and he points a gun at the camera and he continually shows me the gun. He also shows me pictures of ammunition, shows me pictures of aerial firing, and calls me at all odd hours. And this has been going on for a long time. Until now I have blocked his number. So that is one thing. She was about to tell you more. बताइए जी नगीना, फिर आप क्या कह रही थी? और उसके बाद फिर यहाँ भी मैं देखती थी मेरे घर के बाहर कोई ऐसे एक एक बंदे को तो मैंने देखा वो मुसलसल वो सुबह से लेके वहां पे खड़ा रहा है और कभी भी मैं अगर बाहर निकलती हूँ इधर-उधर तो मैं उसे वहीं खड़े देखती थी और मुझे ऐसे लगता था जैसे उनका ही कोई बंदा मुझे देख रहा है या फॉलो कर रहा है। और कभी जो हमारे साथ जो मेरे साथ चल रहे थे बंदे, अगर वो बाहर निकलते तो उनके पीछे 2 मोटरसाइकिलें ऐसे जाती थी और बिल्कुल वो जहाँ वो बंदा तारिक रोड तक गया और वो जब तक उस घर में चला नहीं गया तब तक वो मोटरसाइकिल उसके पीछे ही रही है। जब वो अपनी गाड़ी से उतर के वो अंदर घर में गया तब तक वो मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ी रही है, उसे देखती रही है। फिर उसके बाद वो तो खैर अपने घर चला गया, उसे नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। और इस तरह अब मेरी जैसे छोटी बेटी है, मैं अगर उसे स्कूल भी भेजती हूँ या अगर उसे मैं कभी बाहर आना-जाना मेरा होता है, तो मैं हर टाइम डरी रहती हूँ कि कहीं मेरी कमज़ोरी इस टाइम रोमा है, मेरी छोटी बेटी। तो मुझे हर वक़्त डर लगता है कि जैसे किसी कोई मेरी कमज़ोरी ना पकड़ी है, कोई ऐसा ना कुछ हो जाए कि मैं मतलब मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुँचाए। People stand outside our house and they remain stationed there, and they follow us when we leave the home, and when people come to our home, they follow them too. These are armed people. At times they followed them to far ends of the town. um, my biggest fear right now is my younger daughter Roma. um, Given all of this, I have the strength to face all of this, but I fear for my other daughter, and I fear that these other people, these scoundrels, may find out that my weakness is my other daughter.
does she feel in danger? She and her family, if they feel in danger for their safety and their lives, and do they wish to leave Pakistan to a more secure land? आप और आपका खानदान आपको अपनी जान का आपके ख्याल से खतरा है कि नहीं है, और क्या आप चाहती बिल्कुल हैं, she says yes, और क्या आप चाहती हैं कि आप पाकिस्तान छोड़कर एक और मुल्क जाएं जहां आप महफूज होंगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपनी छोटी बेटी की, क्योंकि मैं एक अपनी बेटी खो चुकी हूँ। लेकिन इसके लिए हर टाइम मैं डरती हूँ। बस मुझे मुझे पता है कि यहाँ पे एक मेरी ये दुश्मनी बन गई है। अगर हुमा जैसे वापस आ भी जाती है ना, तो ये मेरी एक दुश्मनी वो कोई ना कोई वो पीछा करते रहेंगे और वो मुझे नुकसान ज़रूर पहुँचाएँगे। She said yes, because this is now an enmity for life. This is a lifelong feud. They will chase me wherever I go, and I fear not just for my life and for my family, but especially for my younger daughter. Tell her right now, as she's holding this picture, right now as she's talking to the people, there is many mothers listening to her. There is many sisters listening to her. There is many brothers in the Lord listening to her. What will be her message to all of them as she's holding this her daughter picture, as she's holding Huma picture? What's her message to everybody listening to her right now? नगीना, मेरी बात सुनिए. आपने जो ये तस्वीर उठाई है, बहुत सारी माएं आपका ये पैगाम सुनेंगी, बहुत सारी बेटियां सुनेंगी, बहुत सारी बहनें सुनेंगी. आप ये तस्वीर पकड़ के आप पैगाम दें उन सारी माओं को अपने दिल से, और माओं के दिल तक आप पैगाम दें. हम सुनना चाहते हैं. मैं ये अपील करूँगी कि मैं एक माँ हूँ। मैंने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा और पढ़ाया-लिखाया, हर ख़्वाहिश पूरी की। अब हर माँ ये दर्द समझ सकती है, जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ। मैं सबसे ये अपील करती हूँ और यही कहती हूँ कि बस आप मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, ताकि मेरी बच्ची जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि मैंने बड़ा मुश्किल वक़्त ये देखा है। मैं ना रात को सो सकती हूँ, ना दिन को मुझे चैन है कहीं। बस किसी तरीके मेरी हुमा वापस आ जाए और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी बच्ची के लिए दुआ करें। As a mother, other mothers will understand. Homa has been, I have, um, she has been with me for 9 months before she came to this world. I have educated her. I have brought her up with many dreams and much love. You will understand the pain I'm going through. I can neither sleep at night, nor do I have any peace in the day. What I am going through, I wish that no other mother has to go through what I'm going through. Please pray that my daughter comes back, and I appeal to all of you as a mother to please help me and bring Huma back. Nageen, अब आप बोलिए कि हुमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, आप हुमा को अपनी बेटी समझिए और उन्हें वापस लाएं. She's going to say something. Just 1 second. बोलिए. हुमा सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं, वो इस कौम की बेटी है, वो आप सबकी बेटी है, क्योंकि इज़्ज़त सबकी एक जैसी होती है, बेटियां सबकी एक जैसी होती है और सबकी सांझी होती हैं। बस मेरी अपील है कि इसको अपनी बेटी समझ के इसके लिए दुआ भी करें और इसको बाजियाब करने में मेरी मदद करें। Huma is not just my daughter. She is the daughter of this nation. She is the daughter of all the mothers who are listening. Please pray for her and pray that she comes back safely. And if Huma herself listening to you right now, what will be your message to Huma herself? अगर आपको हुमा सुन रही हो इस वक्त,
तो आपका क्या पैगाम होगा हुमा के लिए? अगर हुमा मुझे सुन रही है तो मैं हुमा से रो रो के यही कहूँगी कि हुमा वापस आ जा। अगर उसे किसी चीज़ का डर है कि मैं उसे कुछ कहूँगी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसका पापा उससे बहुत प्यार करता है। सब लोग इतना उसे याद करते हैं, बस उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस उसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, वो जैसे पहले थी मेरे पास वैसे ही रहेगी। कोई उसे कुछ भी नहीं कहेगा, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, उसका पापा उसके साथ खड़ा हुआ है। He's saying, Homa, if you think that you've done anything to annoy us, you're wrong. We love you as much as we've always loved you. Please come back to us. We stand with you. We want you back, and we miss you. Tell her we are praying for her. Tell her that we stand with her, and tell her that we'll never give up. We will always fight for her until she comes home. नगीना, हम आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम इससे अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी बेटी वापस ना आए। जी, Thank you for accepting our call. God bless you. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वक्त हमारे लिए निकाला। खुदा आपके साथ रहे। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, शान भाई आपका, और इनका नाम क्या है? माजिद। माजिद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और कि आप मेरे साथ खड़े हैं। और मैं एक बार फिर आपसे कहूँगी कि बस कुछ भी करें, कैसे भी करके मेरी हुमा को वापस ले आएं। Thank you, Majid. Thank you, Shan. Thank you for what you are doing. Once again, I will remind you, think of Huma as your own daughter and bring her back. Thank you, and we will be in touch again with each other.